Greetings for the day, students. I, Professor Nandish Upadhyay, will take the lecture of Business Startups and Innovation Management. So, welcome to the SY BBA. And in the situation of this pandemic, the new change that we all need to adapt is we need to have the innovation in the teaching even. And as a part of innovation, we, Agrawal Vidya Vihar English Medium College, has gone onto the digital platform of learning. You people are blessed that at very early stage of your academics, you are introduced with the wonderful subject which is startups and innovation. Basically, the subject was usually taught in masters or maybe after that even. But yes, we are blessed that we are having this subject at the early stage of ours. I'll share this subject with Juhi madam. She will take 2 units of yours and I'll teach rest of the 2. So I'll begin with unit number 3. This particular unit is talking about innovations within firms and incubations. 2 different terminologies are coined here. The one is innovations within the firm and second one is incubation. So gradually and slowly we will try to understand both the terminologies, how it will works and why firm should motivate their employees to have innovations within the company and what sort of help they can get from the incubations. This particular chapter is having the weightage of 25%. So first of all, what is innovation? Maybe you all are aware or maybe you all may be not aware. There are 2 different terminologies that you have come across. The word is innovation. The one is innovation and the second one is invention. So let me tell you, what is invention first? Invention is if something is found and if something is created for the first time and introduced to the public at large for the first time, then it is an invention. यानी कि कोई भी चीज अगर पहली बार किसी ने ढूंढी और उसको लोगों के सामने रखी तो वो इन्वेंशन है. जैसे हमारे फोर फादर्स से भी पहले फोर फादर्स जो होमोसेपियंस कहे जाते थे, वो होमोसेपियंस ने अगर पहली बार अगर किसी व्हील को ढूंढा होगा या फिर उन्होंने फायर को ढूंढी होगी, सो दैट इज टर्म्ड एज इन्वेंशन. और उसी के अंदर कुछ चेंजेस लाने के बाद, उसको मॉडिफाई करने के बाद, उसको और अच्छे यूसेज के साथ अगर किसी ने री इंट्रोड्यूस किया तो दैट इज इनोवेशन. सो ये चैप्टर बात करेगा इनोवेशंस के बारे में. बेसिकली वी कैन सी दैट कि आज पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें एंड हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऑलरेडी मार्केट में कहीं ना कहीं अवेलेबल होता है. हाँ, बस जस्ट उसे ढूंढने की जरूरत होती है. सो इन्वेंशंस आर रेयरली टेकिंग प्लेस इन द टुडेज सिनेरियो, बट इनोवेशंस बहुत सारे होते हैं. जैसे सबके पास कार है और कार का इन्वेंशन बहुत सालों पहले हो चुका है. अब उसमें इनोवेशंस क्या क्या है? भाई कार तो सबके पास है लेकिन पार्किंग का प्रॉब्लम है, उसको चलाने का प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है. तो वही ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी को इनोवेट किया ओला ने और उबेर ने. सो दैट इज इनोवेशन कि आपको वही ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है कि आप गाड़ी में बैठ के ही आपकी ऑफिस जा रहे हो. इन्वेंशन हो गया गाड़ी का, लेकिन इनोवेशन क्या हुआ? ओला एंड उबेर ने सर्विस देना शुरू कर दिया. भाई इन्वेंशन हुआ मोबाइल का, कम्युनिकेशन का. ग्रेहम बेल ने फोन जब सबसे पहली बार ढूंढा और उसने हेलो कहा तो फोन का इन्वेंशन तो हो गया, बट इनोवेशन कि इस फोन के साथ उसके साइज को, स्ट्रक्चर को, उसके सिस्टम को एंड हाउ वी हैव श्रिंक्ड इट टू द पॉकेट साइज फोन,
और उसके अंदर भी there are so many applications जो आज यूज होती है rather than calling someone. So innovations are, we are having so many different works that we can do with the help of mobile phone. That is innovation. So here we can see the wheel is there जो सबसे पहली बार invent किया गया था, and there is a car in which we have modified the usage of the wheel with the systematic innovation. So this is what the basic difference between invention and innovation. So basically हम थोड़ा पीछे जाते हैं. Again, what it says, innovations within firm. अब आपके फर्म के अंदर इनोवेशन की क्या जरूरत है उसके ऊपर मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा. What we usually do have in our business is कि हमारे पास resources होते हैं. We all do have all sort of resources like finance. We all do have the machines. If it is a manufacturing, if it is a process, then we all do have the all sort of systems. They are lined up to serve the product to the customers. But what we're lacking is still customer requires something new. Still customer requires something advanced. And that is what the innovation comes into the picture. Why we require innovation? Because of the monotony, because of the newness, because of the change, because of the information age, customer की expectations कभी भी fulfill नहीं होती या फिर वो पूरी नहीं होती. तो उसके लिए we need to have the innovations. छोटा सा एग्जाम्पल और एक देता हूँ. अगर मैं आपको फ्री में ट्रीट देता हूँ कि चलो भाई सब कॉलेज आ जाओ, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग में दूर दूर बैठेंगे और मैं आप सबको ट्रीट देता हूँ, सबको मैं वड़ा पाव खिलाता हूँ, राइट? सो यू ऑल हैव गैदर्ड, वी ऑल हैव गैदर्ड, वड़ा पाव खाया और उसके बाद हम लोग वापस घर चले गए. टुमारो अगेन आई एम गिविंग यू द ट्रीट, सेम प्लेस, सेम लोकेशन और सेम सॉर्ट ऑफ वड़ा पाव आई एम ऑफरिंग यू. दूसरे दिन भी सब आएंगे क्योंकि फ्री में वड़ा पाव की पार्टी है, ट्रीट है, तो यू ऑल आर गैदर्ड. बट सेम टेस्ट एंड सेम फ्लेवर, सेम प्लेस, जहां से हमने वड़ा पाव लाया था वो सारी चीजें सेम है. डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, अगर वो सेम चीज ही मैं ऑफर करता रहूंगा मेरे कस्टमर्स को, तो उसके बाद मोनोटोनस हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाट, कि आपके कस्टमर्स को आपकी प्रोडक्ट बोरिंग लगने लगेगी. तो उसमें कुछ नया, अब वड़ा पाव के अंदर नया क्या हो सकता है? यस, हो सकता है, एंड पीपल हैव डन दैट. जो आपको परफेक्ट कंपटीशन में एक दूसरे से कुछ अलग जो दिखना चाहते हैं, they have done that. What they have done? They have added the ingredients. They have changed the making style of the vada pav. They have somehow added some more elements rather than using the vada as a component, or we can say the element into the vada pav. They have added samosa into that even. So this is what the innovation. Or you won't believe, ये चल भी रहा है मार्केट में. सो विच मीन्स कस्टमर आर हैप्पी एंड दे आर एडप्टिंग इट इवन. तो इनोवेशन है कि आप आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर, ऑफरिंग्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर कुछ नई चीजें लाओ जिससे आपके कस्टमर अभी भी और कंटिन्यूसली एंगेज रहे और आपके साथ बने रहे. सो दैट इज व्हाट द इनोवेशन विद इन द फर्म. देन सेकेंड वर्ड इज इंक्यूबेशन. इंक्यूबेशन, इट इज अ काइंड ऑफ अ ग्रूमिंग पीरियड कि जहां पे आपको थोड़ा वार्म अप करने का टाइम मिलता है, एंड यू कैन स्टिल हैव द टाइम टू फ्रेम ऑल द थिंग्स इनटू द वन पिक्चर, कि जिससे आपका एक बहुत ही वंडरफुल ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड और सिस्टमेटिक प्लानिंग बन सके कि जिससे आप आपका बिजनेस स्टार्ट कर सको. नाउ वी हैव सीन दैट इट इज द एरा ऑफ स्टार्टअप, एंड जब स्टार्टअप की बात करते हैं तो इंडिविजुअल एंड many of the companies and group of people can have their startups. तो जब इंडिविजुअल और छोटे छोटे ग्रुप्स उनके स्टार्टअप करते हैं, डेफिनेटली दे डोंट हैव दी दैट मच अमाउंट ऑफ मनी कि जिससे वो उनके नेसेसरी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कलेक्ट कर सके और इकट्ठे कर सके. सो व्हाट दे रिक्वायर सम काइंड ऑफ हेल्प, और ये हेल्प करते हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स. दिस हेल्प कैन बी इन फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग यू गाइडेंस, providing you office space, providing you liquid money for the initial period, providing you some kind of a stationary equipments even, providing you a laboratory where you can conduct your experiments, providing you
a computer or the machineries. तो इंक्यूबेशन होता है आपको हेल्प प्रोवाइड करने वाला एक एलिमेंट. इट कैन बी एलिमेंट, इट कैन बी ऑब्जेक्ट, और इट कैन बी द स्पेस, और इट कैन बी द पर्सन, जो आपको इंक्यूबेट कर सकता है. तो इंक्यूबेशन क्या है? that we will read from the slide. Startup incubators are institutions that help entrepreneurs to develop their business. Existing business है तो उसको आगे next level तक कैसे लिया जाए, horizontal and vertical diversification कैसे किया जाए, तो आपके existing business को develop करने में भी help करता है. And अगर स्टार्टअप है तो स्पेशली इनिशियल स्टेज को कैसे कंप्लीट करके आप आपका एग्जिट वेंचर और वी कैन से सिस्टमेटिक बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सको, उसमें हेल्प करता है. Along with that, incubation function is usually done by institutions who have experience in business and technology. But as an example, आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है गांधीनगर में, जिसको EDI कहा जाता है, that helps the startups, जो इंक्यूबेशन सर्विस प्रोवाइड करता है स्टार्टअप्स को. कैसे सर्विसेज? एज एन एग्जांपल, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कुर्ती का बहुत ही वंडरफुल नॉलेज है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसको मार्केट कैसे किया जाए, या फिर मुझे ये नहीं पता कि चैनल मैनेजमेंट या चैनल सिलेक्शन क्या होगा, या फिर मुझे ये नहीं पता कि उसको डिस्पैच एंड सेल कैसे किया जाए. सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू कॉन्टेक्ट द इंक्यूबेटर्स. मैं इंक्यूबेटर्स के पास चला जाऊंगा एंड आई विल टेल देम कि मेरे पास डिजाइनिंग का बहुत ही वंडरफुल नॉलेज है, मैं कुर्तीज बहुत ही अच्छी डिजाइन कर सकता हूँ. यू जस्ट हेल्प मी विद द सप्लाई चेन, यू जस्ट हेल्प मी विद द ऑनलाइन मार्केटिंग, यू जस्ट हेल्प मी विद द CRM, एंड दैट इज व्हाट द रोल ऑफ इंक्यूबेटर इज. बिकॉज इनिशियल फेज के अंदर ये सारी चीजें, सप्लाई चेन खुद से मैनेज करना, CRM खुद से मैनेज करना, और मार्केटिंग ऑनलाइन डिजिटली खुद करना, विच इज नॉट पॉसिबल. और ये सारे काम करने के लिए लोगों को हायर करना और उनको सैलरी देना, विच इज नॉट पॉसिबल इवन. सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू हैव द हेल्प ऑफ इंक्यूबेटर्स. तो ये इंक्यूबेटर्स मुझे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, इनिशियल स्टेज के लिए हेल्प करेंगे एंड मेरा बिजनेस मुझे सेटअप कराएंगे. So that is what the role of incubation center is. Incubator support includes providing technological facilities and advices. जैसे मैंने बताया कि मुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैसे किया जाए, so incubators will tell me that कि how we will enable to the digital platform कि जहाँ पे मेरा मार्केटिंग हो सके, जहाँ पे मेरे नंबर ऑफ लाइक्स एंड नंबर ऑफ अपीयरेंसेस ऑन माय वेबसाइट एंड पोर्टल एंड एप्लीकेशन बढ़ सके. तो ये एडवाइस मुझे करते हैं मेरे इंक्यूबेटर्स. देन इनिशियल ग्रोथ फंड, यस डेफिनेटली, अगर मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू मेरे प्रोडक्ट्स को बेचना चाहता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ वैरायटीज होनी चाहिए, नंबर ऑफ ऑप्शंस होने चाहिए, और कस्टमर प्रोडक्ट परचेस करने के साथ मैं ये नहीं बोल सकता कि ये आउट ऑफ स्टॉक है. तो ये सारी चीजें प्री प्रिपरेशंस के लिए इफ आई रिक्वायर, देन आई रिक्वायर इनिशियल ग्रोथ फंड्स इवन. तो ये ग्रोथ फंड भी प्रोवाइड करता है आपके ऑब्जेक्टिव को देख के आपके इंक्यूबेटर्स. Incubators usually check that whether the business which we are offering or which we are oriented towards are having the potential or not, and by checking the potential they usually invest into this kind of a business. What they does third, they have their own networks and linkage, and accordingly they help me to set my own network according to my business, and the linkage will help me to have the supply chain and direct manufacturer to customer acquisition. They provide the co-working space even. As an example, if I require only 200 square feet of space in which I can have my office and I can have my workings, so why should I hire the space of 1000 square feet and why should I pay the rent to them? So what it does is they offer me the space on a time being, on a temporary basis, on an hourly basis, on a monthly basis, and I can work and I can pay the amount of money for that particular time being, or we can say the month only. They provide us the lab facility. So एक तो experiment करने के लिए आप खुद का lab setup करो, उससे better है you hire the lab facilities, those who are providing, and that's how you can have your own experiments and own newness into the product. They can monitor the business even. If we hire someone to just to monitor a business and finding the loopholes between the system, so
आपके लिए कुछ समय के लिए मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, एंड दे कैन गिव यू द एडवाइजरी सपोर्ट इवन। सो ये अर्ली स्टेज मेंटर्स जो होते हैं वो बहुत ही वंडरफुल रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में हमारे बिजनेस को सेट करने के लिए। बिकॉज इनिशियल फेज में स्टार्टअप्स में देखा गया कि आउट ऑफ 10, 8 businesses shut down within the initial phase only, and उनके reasons यही सारे होते हैं because they don't have the that much help, or we can say the guidance or the team which they require, and उसकी वजह से ही बड़े बड़े आइडियाज फ्लॉप हो जाते हैं। तो वही रेशियो को कम करने के लिए और उसको और ज्यादा सिस्टमेटिक एंड स्मूथ करने के लिए इंक्यूबेटर्स आते हैं जो यूजुअली हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। द फर्स्ट वन इज इनोवेशन विद इन द फर्म एंड द सेकंड वन इज इंक्यूबेशन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का हमारा सिलेबस के पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इनोवेशन मैनेजमेंट, की इनोवेशन क्या है उसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, और इनोवेशन की डिफिनेशंस, इनोवेशन के टाइप्स। सॉरी, इनोवेशन यूजुअली दो तरीके के होते हैं। द वन इज प्रोडक्ट इनोवेशन, द सेकंड वन इज सर्विस इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन इज व्हाट, कि अगर जैसे मैं कुछ नई प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के अंदर इटसेल्फ, जैसे कि एज एन एग्जांपल मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन जो आपका पहले कॉटी कीपैड वाला था, उसमें से अगर वो टच पैड वाला हो गया, सो दैट इज व्हाट द प्रोडक्ट इनोवेशन इज, कि प्रोडक्ट इटसेल्फ के फॉर्म के अंदर वो इनोवेशन आया। इफ वी टॉक अबाउट द कार्स, अब आज कार्स आपको हाइब्रिड मॉड्यूल में अवेलेबल है, विच इज हैविंग द पेट्रोल ऑप्शन as well as the electric charging option even, Morris Garage, so that is what the innovation even। तो ये इनोवेशन प्रोडक्ट बेस हुआ। अब सर्विस व इनोवेशन की बात करते हैं। सर्विस इनोवेशंस आर, ये लॉकडाउन के पेंडेमिक के पीरियड के अंदर हमने देखा कि वी ऑल आर बाइंग द फूड्स फ्रॉम द रेस्टोरेंट ऑन जोमैटो एंड थ्रू द जोमैटो एंड स्विगी ओनली, सो दैट इज व्हाट द सर्विस इनोवेशन। पहले भी पार्सल की फैसिलिटी अवेलेबल थी, लेकिन वो हमें खुद वहां पे जाना पड़ता था, पार्सल को वापस घर पे लाना पड़ता था। वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ अ मीडिएटर इन बिटवीन। तो ये सर्विस इनोवेशन हुआ। तो ये सारे सर्विस एंड प्रोडक्ट इनोवेशन की हम लोग बात करेंगे फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में हम लोग डिस्कशन करेंगे इनोवेशन का मीनिंग, टाइप्स ऑफ इनोवेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया। देन सोर्स ऑफ इनोवेशन, कि ये इनोवेशन एक्चुअली इग्नाइट कहाँ से होता है या फिर उसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है। बेसिकली ये सारे इनोवेशंस शुरू होते हैं कस्टमर की नीड से, मार्केट के चेंज से, कस्टमर की अवेयरनेस से एंड इंफॉर्मेशन के स्प्रेड से। If I have seen that ki in the other country people are buying the food and groceries from online modules and platforms only, and in my country which is we are not having this kind of a services, that will create the urge of retailers that we should have the online applications and grocery stores from where customers can buy the products. So this is what the source of innovation is. So we have made them, as a customer we have made them unable to move on to the online and digital platform. Then it comes to the models of innovations, how the innovations will happen and what has to be the strategy and the steps. That is what the innovation process, that is what the model of innovation. Once we are deciding the model, then we need to have the management process. Innovation is done, but वो innovation implement भी तो होना चाहिए। So innovation को implement करने के लिए innovation management process. Then it will come to managing innovations within the firm. आपको ये innovations करने के लिए firm के बाहर नहीं, but आपके ही individuals को यानी कि employees को use करते हुए आप innovations करो, और वो कैसे हो सकता है that we will study here. इसके बारे में आपको एक छोटा सा स्टोरी भी सुनाऊंगा, but ये सिलेबस का डिस्कशन हो जाए उसके बाद में। Then the next point is organizational characteristics that facilitate the innovation process. Innovations आप आपके एम्प्लॉयज से कराओ, यानी कि उनके ही सजेशन, उनके ही एक्सपेरिमेंट्स को आप इनकलकेट करो, दैट इज मैनेजिंग इनोवेशन विद इन द फर्म। बट आपका ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, विच मीन्स आपके ओनर वो ऐसा नहीं चाहते कि मेरा एम्प्लॉय मुझे गाइडेंस दे या फिर मेरा एम्प्लॉय मुझे सजेशन दे, तो नहीं हो सकता।
If you are not motivating your employee to do something extra, new and innovative, then also वो नहीं हो सकता. आप आपके एम्प्लॉयज को फाइनेंशियल हेल्प नहीं देना चाहते, रिनोवेशन करना चाहते हैं, तो भी नहीं हो सकता. आपके एम्प्लॉयज को ऐसा बोलते हैं कि भाई क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है, जो हम बोले वैसा ही बिजनेस आप करते रहो, वैसे ही आपका काम करते रहो, तो भी इनोवेशन नहीं हो सकता. तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की हमें जरूरत है कि जिससे इनोवेशन प्रोसेस आगे बढ़ सके, मोटिवेट हो सके, that we need to study in this particular point. Then organizational structure and innovation. किस तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की सेट होना चाहिए और कैसे आपके इनोवेशंस को मैनेज एंड मेंटेन किया जाना चाहिए. बिकॉज सिर्फ इनोवेट करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो इनोवेशन को कमर्शियलाइज भी तो करना है. दैट मीन्स वी नीड टू हैव द सेलेबल प्रोडक्ट which is adopted by the customers. If your innovation is such a huge and such a modernized that customer cannot buy that product and adopt that product, so it is not of worth. तो आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इनोवेशंस ऐसे होने चाहिए जो कंपनी को भी एडप्टेबल एंड अफोर्डेबल हो, एज वेल एज कस्टमर भी उसको बाई करके कमर्शियल कर सके. देन रोल ऑफ इंडिविजुअल इन इनोवेशन प्रोसेस, कि आपके इनोवेटर्स जो इनोवेट कर रहे हैं, आपके कंपनी के ऑर्गेनाइजर्स जो उसको अवेलेबल कर रहे हैं एंड अलाउ कर रहे हैं, उन सब के रोल जो इनोवेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे. देन एस्टेब्लिशिंग एन इनोवेटिव एनवायरनमेंट, किस तरीके से आप आपके सराउंडिंग को, आपके कंपनी के विद इन के सराउंडिंग को इतना ज्यादा मोटिवेटेड, एक्टिव एंड पॉजिटिव बना सकते कि जिससे हर एक इंडिविजुअल उनके खुद के वर्क को और ज्यादा स्मार्ट एंड स्मूथ करने की कोशिश कर सके. जैसे हम लोग चाहते हैं ना गवर्नमेंट सेटअप के अंदर, तो आपको एक वाइब्स एंड फीलिंग अंदर आ जाती है कि ये बहुत ही ज्यादा डल एटमोस्फियर है, बिकॉज नो वन इज ऑब्जेक्टिव एंड ओरिएंटेड टुवर्ड्स मेकिंग द चेंज. कोई उनकी पुराने सिस्टम के अंदर चेंज नहीं लाना चाहता. व्हाट दे आर डूइंग इज, जब वो कंपनी में ज्वाइन हुए थे, गवर्नमेंट सेटअप के अंदर ज्वाइन हुए थे, तो आज से 20 साल बाद भी वो वही काम करेंगे, उससे ज्यादा नया कुछ वो करेंगे नहीं. एंड दैट इज व्हाट द रीजन कि हम गवर्नमेंट ऑफिसेज और गवर्नमेंट बैंक्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर के साथ डील करने से थोड़ा बहुत डरते हैं, बिकॉज वी न्यू दैट कि उनके साथ काम करने में बहुत मजा नहीं आती. एंड दैट्स व्हाई आप उसके कंपैरिजन में देखो प्राइवेट बैंक्स जो आपको सामने से ग्रीट करेंगे, वेलकम करेंगे, और आपका 2-3 घंटे का गवर्नमेंट बैंक का काम शायद यहाँ पे 20 मिनट या आधे घंटे में हो जाएगा. तो ऐसा इनोवेटिव एनवायरनमेंट यानी कि पॉजिटिव वाइब्स और आपके फ्रेंडलीनेस विद इन द फर्म, वो आपको इग्नाइट करने होंगे, सेटअप करने होंगे. सो हाउ वी कैन डू दैट वी विल डिस्कस हियर. Along with that, role of information technology system and their impact on innovation. Yes, definitely major part जो आपका innovation का है वो information technology ही carry करता है, और उसके basis पे ही innovations बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं. Who have thought of that कि इंटरनेट को अगर कार के साथ एसोसिएट कर दिया जाएगा तो कार अपने आप खुद के डिसीजंस लेंगी और आपके जो फैसिलिटी और आपके जो एक एक्सपीरियंस है उसको और ज्यादा अच्छा बनाएंगी. नो वन हैज थॉट ऑफ दैट, बट यस, टेस्ला एंड मॉरिस गैराज हैज डन दैट कि आपका पूरा कार इंटरनेट अनेबल्ड, whatsoever you want to do, whatsoever the function you want to do. यानी कि आप कार में बैठना चाहते हो, 5 मिनट पहले ही आपको कार को बता दो कि भाई एसी ऑन कर दो, मैं 5 मिनट बाद कार में बैठने आ रहा हूँ. That's what you can handle from your mobile, and you must have seen in the advertisements of Morris Garage, right? आप सनरूफ को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, भाई मुझे कितनी सनलाइट पसंद है, नहीं है. That's what you can do with the voice modulations. आप कार का इंजन आपको स्टार्ट करना है, यू डोंट नीड टू टच एनी ऑफ द बटन, और वी कैन से कि आपको कीज का यूज नहीं करना है. व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू टेल हर कि भाई कार शुरू हो जा. टेस्ला इज ऑन द नेक्स्ट वर्ड कि आपको कार चलानी भी नहीं है, यू जस्ट नीड टू सिट बैक एंड यस, स्मार्ट कार्स आर देयर फॉर देम, एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स के ऊपर वो लोग वर्क कर रहे हैं कि जिससे विदाउट ड्राइवर, विदाउट शॉफर, यू कैन हैव द सेम एक्सपीरियंस. तो उसमें वो लोग सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं. शायद हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट अब सेकेंडरी हो चुकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म का यूसेज हमारे लिए प्राइमरी हो गया है, एंड एट द सेम टाइम ये एप्लीकेशंस एंड प्लेटफॉर्म का हमारे साथ डेली रूटीन लाइफ के अंदर इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा है.
शायद ऐसा भी आ जाएगा कि आपके घर की चाबी या बाइक की चाबी ढूंढने के लिए भी आप लोग मोबाइल फोन पे देखोगे कि वेयर आई हैव लोकेटेड इट लास्ट, राइट? तो ये सारी चीजें हो सकती है इन फ्यूचर, एंड दिस इज व्हाट द रोल ऑफ आईटी सिस्टम इन आवर लाइफ इवन। तो इसका इम्पैक्ट इनोवेशन के साथ, इनोवेशन को कैसे इनकलकेट आपका आईटी कर सकता है, दैट विल स्टडी हियर। बहुत सारे उसके वर्सटाइल डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ये सारे डिस्कशंस और ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोग थोड़ा उसको बाउंड्री में रखते हैं, बट डेफिनेटली ये जो पॉइंट आएगा तो बहुत सारे डिफरेंट वर्सटाइल एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कशन करेंगे। Then last point, the public and private incubation and the history of business incubators। कि public incubation centers and private incubation centers कौन कौन से है, कैसे है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था incubation, जब मैं आपको समझा रहा था तब EDI का, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो गांधीनगर में सेंटर है, विच इज अ पब्लिक इंक्यूबेशन। जो गवर्नमेंट इसको रन करता है तो दैट इज अ पब्लिक इंक्यूबेशन। प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर्स आर हु, जो एक खुद इनोवेटर होता है या फिर एक खुद इन्वेस्टर होता है, जो हमारे जैसे छोटे छोटे इनोवेटर्स को मोटिवेट करने के लिए वो आपको स्पेस मैनेजमेंट सर्विसेज या फिर फाइनेंस और शॉर्ट टर्म नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। जैसे प्राइवेट इंक्यूबेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। चलो, तो मैं आपको ये दो पिक्चर्स देखने के बाद आपको कुछ तो आइडिया आया होगा कि ये प्रोडक्ट क्या है। मैं आपको इनोवेशन विद इन द फर्म का एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। डू यू नो हु हैज इन्वेंटेड द स्टिकी नोट्स? अच्छा, कौन सी कंपनी का है, कुछ पता है? ये बहुत ही फेमस कंपनी है 3M, जर्मन बेस, उस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। और डेफिनेटली हम उसको डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं और बहुत ही वंडरफुली यूज करते हैं। अब इसका इनोवेशन विद इन द फर्म के साथ क्या लेना देना है? लेट मी गिव एन एग्जांपल और गिव यू द स्टोरी कि 3M कंपनी ने स्टिकी नोट्स कैसे इन्वेंट किया। 3M कंपनी का सबसे वंडरफुल रूल ये है कि जो भी एम्प्लॉयज उनके पास है, वो एम्प्लॉय, इंडिविजुअल एम्प्लॉय, उनके टोटल वर्किंग आवर्स का 15% वो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यूज कर सकता है। When they will make an experiments, what they can do is the machineries, the finance, the experimentation lab which are already there, they can use that, and the necessary inputs are provided by the company. And whatever the new product in the process they will introduce, company will patent it that, and company will provide royalty to the innovators. So that is what they have done. And once upon a time in 1968, Dr. Spencer Silver was a chemist at 3M company. He was trying to invent the strongest adhesive. Adhesive, that means a glue. ऐसा strongest glue वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, बट उस एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान what happened is कि उन्होंने सबसे weakest glue, the adhesive, ढूंढ लिया। और वो इतना वीकेस्ट था कि एक बार उसको कहीं स्टिक करने के बाद उसको रीयूज करके, यानी कि वापस निकाल के वापस हम चिपका सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट वी डज विद स्टिकी नोट इवन, कि कहीं से एक बार उसको चिपका के निकाल लिया, देन वो रीयूज हो सकता है। एंड ये एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान एडवर्स इफेक्ट से बना हुआ प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा चलने लगा कि कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 13% रेवेन्यू ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जनरेट करता है। So that is what only happened with the help of innovations allowances. जो innovation allow किया गया तो ये product बना। Hypothetically सोचो कि if this innovations was not allowed by the company और ये innovations नहीं होते company में, तो शायद ये product हमारे सामने नहीं होता। So this is what the actual story of providing innovations within the company. This is what the article and the story which supports my story to you, the case which I have discussed with you. तो इसको आपको रीड करना और उसको समझना, और यही तरीके से हम लोग ये चैप्टर को, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आगे बढ़ते देंगे। सो फॉर नाउ, थैंक यू ऑल, एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेशन जब हम आगे और डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू।